In a previous class, we had already studied about axis, origin, and quadrant, and coordinates of a point in a plane, and how to plot a point in a plane. हाँ, हमने देखा था कि हाउ एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू कैसे निकालते हैं, वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू कैसे निकालते हैं, और किसी भी पॉइंट को प्लेन में कैसे दिखाते हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट द पॉइंट इन अ plane. Now, in this class, we will study the equation of a line which is parallel to x-axis and equation of a line which is parallel to y-axis. Equation of line parallel to x-axis and equation of a line parallel to y-axis. And also, we will see the general form of the equation, general form of the linear equation, general form of the linear equation. Graph of, we will see the graph of the general form of the linear equation. Okay, graph of general form of the linear equation. तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं आप सभी को वेलकम करता हूं, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए हम पढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट 7.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सो फर्स्ट वी विल सी द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सो फर्स्ट वी विल सी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। Now, if I show you the graph, now tell me this axis is the x-axis and this axis is the y-axis. So what I am saying that what is the equation of this line? Equation of this line which is parallel to x-axis. So now let me draw the line. Suppose if I make a line like this, right? माफ कीजिए थोड़ा ऊपर नीचे हो जा रहा है. So if I make a line like this, so tell me what is the coordinate of this line? This point lies on this line. Again, this point lies on this line. Again, this point lies on this line. If I say the A, B, C, this D, this E, all these points are lies on this line only, right? ये लाइन के ऊपर ही आपको सब दिख रहे होंगे. So अगर मैं आपको पूछूं कि A का कोऑर्डिनेट बताइए, B का कोऑर्डिनेट बताइए, C का कोऑर्डिनेट बताइए, D का कोऑर्डिनेट बताइए, E का कोऑर्डिनेट बताइए, तो आप क्या बताएंगे? A का कोऑर्डिनेट इज 0,1. B का कोऑर्डिनेट इज 1,1. C का कोऑर्डिनेट इज 2,1. D का कोऑर्डिनेट इज 3,1. E का कोऑर्डिनेट इज 4,1. So if you observe, then you will get the y coordinate is constant, right? Y coordinate is constant. मतलब जितने भी पॉइंट आप ले लो सबके y कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे? ऑलवेज सेम रहेंगे. क्या रहेंगे? सेम. एंड दिस पॉइंट्स आर आल्सो कोलिनियर, राइट? एक ही लाइन में आ रहे हैं तो दे आर कोलिनियर आल्सो. So their y coordinates are equal, their y coordinates are same, so we can say that this line is parallel to x axis and the equation of this line is y is equal to 1. Y is equal to 1, right? So let me change the color. So if I make another line like this, can you tell me the equation of this line? The equation of this line is y is equal to 2. Because if you take any point on this line, any point, then you will get the coordinate like -1, 2, 2, and 4, 2. So again you see the y coordinate is same. Y coordinates are equal. Y coordinates are constant, right? So the equation of this line is y is equal to 2. Again, if I draw one more line, then the equation of this line is y is equal to 3. If I draw one more, then equation of this line is y is equal to 4, right? So we got the conclusion that if a line parallel to x-axis, then the equation of a line in terms of y, then the equation of that line is in terms of y. So always we need to write y is equal to something. That is 1, 2, 3, whatever with the case, whatever with the condition, right? So I can I write y is equal to b. B is a number, constant number, right? So this y is equal to b. This
line represent the equation of a line which is parallel to x-axis. Now there are two cases. If b is greater than 0, suppose b का value is 1, b का value is 2, b का value is 3, b का value is 4, then equation of the line, then the line lies above the x-axis. तब वो क्या करेगा बेटा, तब वो जो लाइन रहेगा वो एक्स एक्सिस के ऊपर है. आप देख रहे हैं ऊपर है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, राइट. सो लाइन लाइज above the x axis. Now case number 2, if b is less than 0, b is less than 0, then line lies below the x axis, below the x axis. मतलब यहां पे आपने ड्रॉ किया तो देखिए क्या होगा, y इज इक्वल टू -1, यहां पे ड्रॉ किया तो y इज इक्वल टू -2, यहां पे ड्रॉ किया तो y इज इक्वल टू -3, यहाँ पे ड्रॉ किया तो y इज इक्वल टू -4. तो ध्यान से देखिए -4, -3, -2 दे आर द इंटीजर्स एंड दे आर लेस देन 0. सो अगर b का वैल्यू जो आपका होगा ग्रेटर देन 0 होगा तो इक्वेशन क्या होगा, अबोव द x एक्सिस होगा, एंड b इज लेस देन 0 होगा तो इक्वेशन क्या होगा, मतलब जो लाइन होगा वॉट एवर द लाइन दैट लाइज बिलो द x एक्सिस, राइट, x एक्सिस. नाउ व्हाट if the case is that if b is equal to 0, then line lies on the x axis. तो जो लाइन होगा वो x एक्सिस के ऊपर होगा, ओवरलैप होगा. उसका इक्वेशन क्या होगा, उसका इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू 0. तो आपको एक चीज याद रखनी है कि जो x एक्सिस है उसका इक्वेशन क्या है, उसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0. हाँ, राइट. इफ b इज ग्रेटर देन 0 तो इक्वेशन का जो लाइन है उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, that is y is equal to 1, y is equal to 2, y is equal to 3, whatever be the case, जो भी हो सकता है. अगर b less than 0 है, मतलब जो वैल्यू है, नंबर less than 0 है, तो जो इक्वेशन होगा वो कहाँ होगा, वो होगा जो लाइन होगा वो कहाँ होगा, वो बिलो x एक्सिस होगा और उसका इक्वेशन क्या होगा, y is equal to -1, y is equal to -2, y is equal to -3. आई होप आपको समझ में आ रहा है, राइट. सो दिस वाज द लाइन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस. नाउ नेक्स्ट वी विल सी the equation of a line parallel to y-axis, Similarly, if I draw a line here, माफ कीजिए. Similarly, if I draw थोड़ा सा बाहर चला गया. If I draw a line, थोड़ा बेयर कीजिएगा. इफ आई ड्रॉ अ पॉइंट, ये एक पॉइंट हो गया, सारे पॉइंट कोलिनियर है, एक ही लाइन पे आ रहे हैं, सारे पॉइंट कोलिनियर. तो अब देखिए ये जो लाइन है ये किसके पैरेलल है, ये पैरेलल टू y एक्सिस. किसके पैरेलल है, पैरेलल टू y एक्सिस. तो मुझे इसका कोऑर्डिनेट बताइए. तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 1,3. इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 1,2. इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 1,0. इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 1,-2. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबका x कोऑर्डिनेट क्या है, सेम है. सो जो इक्वेशन होगा इस लाइन का वो होगा x इज इक्वल टू 1. क्या होगा, x इज इक्वल टू 1, राइट. भले ये सारे पॉइंट जो है ये लाइन पे हैं, दे आर कोलिनियर, बट देयर x वैल्यूज आर ऑलवेज कांस्टेंट. तो सो द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन व्हिच इज पैरेलल टू y एक्सिस इज इन टर्म्स ऑफ x ओनली. ठीक है, पैरेलल टू y एक्सिस, तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इन टर्म्स ऑफ x हो जाएगा. तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. अगेन इफ आई ड्रॉ अ लाइन हियर 2 से, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -2 हो जाएगा. यहाँ पे ड्रॉ किया तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -4 हो जाएगा. क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -4 हो जाएगा, राइट. सो लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, वहां पे क्या था, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस था, तो इक्वेशन क्या था, इन टर्म्स ऑफ y था. बट यहाँ पे लाइन क्या है, पैरेलल टू y एक्सिस है. लाइन जो है वो पैरेलल टू y एक्सिस है, तो उसका जो इक्वेशन होगा वो इन टर्म्स ऑफ क्या होगा बेटा, x होगा. क्या होगा, x. तो मैं इसको लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू a. अब यहाँ पे अगेन दो केस बनेगा. अगर x इज इक्वल टू a हो, 0 होगा, मतलब a जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा. क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा. तो जो लाइन होगी वो राइट हैंड साइड में आएगी. कहां पे आएगी, राइट हैंड साइड में, मतलब ऑन पॉजिटिव x एक्सिस, ऑन पॉजिटिव x एक्सिस. जो लाइन आएगा वो कहां पे आएगा, वो पॉजिटिव x एक्सिस पे आएगा. अगर यही मैं बोलूं a लेस देन 0 है तो लाइन कहां पे आएगा, लाइन ऑन नेगेटिव x एक्सिस. कहां पे आएगा,
नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो अगर मैंने बोला a इज इक्वल टू 0, तो लाइन कहां पे आएगा? ऑन y एक्सिस ओनली, ऑन y एक्सिस। तो उसका इक्वेशन क्या होगा? उसका इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू 0। तो जो x एक्सिस है उसका इक्वेशन क्या था? y इज इक्वल टू 0। और जो y एक्सिस है उसका इक्वेशन क्या होगा? x इज इक्वल टू 0। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन पार्ट। एक और चीज बच गया है, वो है दैट ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द जनरल फॉर्म। तो ऐसे ही आपको जनरल फॉर्म दी रहेगी, जैसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये आपके सिलेबस में है नहीं, पर मैं बता देता हूं। मतलब ये जो इक्वेशन है ये सिलेबस में नहीं है, आपको तो ऐसे दी हुई है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये जनरल फॉर्म है। क्या है? ये जनरल फॉर्म का इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन है लेकिन ये जनरल फॉर्म है, मतलब 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब इसका हमको क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? ग्राफ। मतलब ग्राफ पे इसको रिप्रेजेंट करना है। तो अभी तक हमने देखा कि लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, लेकिन ये जो इस इक्वेशन का जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ये कुछ आपको ऐसे मिलेगा, क्रॉस में मिलेगा। कैसे होगा? ये प्रैक्टिस सेट में प्रॉब्लम है, मैं वहां पे आपको बता दूंगा। बट मैं बता देता हूं कि ये जो लीनियर इक्वेशन है ये पैरेलल टू एक्स भी नहीं आएगा, पैरेलल टू वाई भी नहीं आएगा। ये कुछ ऐसे आएगा, वरना ऐसे जाएगा, वरना ऐसे जाएगा। समझ में आ रहा है? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट ये पैरेलल नहीं आ सकता है, ठीक है, पैरेलल नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। तो अभी के लिए बस यहाँ पे रुकते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 7.2। चलिए, धन्यवाद।